was thinking about this phrase, it was coming to my mind yesterday. It's about the living God. मैं कल से ये चीज के बारे में सोच रहा था और वो है जीवित परमेश्वर। One of the things that Jesus came to show is that God is a living God. प्रभु यीशु एक चीज दिखाने आए हर एक व्यक्ति को कि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। That is one of the greatest revelation that we have, that my God is living. और ये बहुत ही बढ़िया ज्ञान हमारे पास है कि हमारा परमेश्वर जीवित है। We are not following a dead person, हम लोग एक मरे हुए व्यक्ति का पीछा नहीं कर रहे, but we are following a living God who is ruler of heaven and earth. लेकिन हम लोग जीवित परमेश्वर का पीछा कर रहे हैं जो स्वर्ग और धरती के ऊपर राज करता है। And once we come to a revelation of that in our own lives, और एक बार हम लोग ये ज्ञान हम लोग को प्राप्त होगा हमारे जीवन में, then our lives will increasingly be changed. और फिर हमारा जीवन और बदलते जाएगा। And that is one of the things that we have to always proclaim in the church. और ये हमेशा हमें बोलते रहना है हमारे कलीसियाओं में। Because otherwise we will just have a form of worship that we have when we come and serve a God who is not living. वरना बस एक बाहरी दिखावा रहेगा हमारा पूजा और हमारा आराधना का, अगर हम लोग ये नहीं जानेंगे कि हमारा परमेश्वर जीवित है। In 1 Thessalonians chapter 1 verse 9, 1 Thessalonians chapter 1, पहला थिस्सलुनीय चैप्टर 1, पहला थिस्सलुनीय चैप्टर 1, Thessalonian comes after which book? Colossians 1:9. एक उसमें वाक्य 9 चैप्टर 1 Instead of talking about the Colossians, about the Thessalonians, that they themselves report about what kind of reception we had with you, how you turned to God from idols to serve a living and a true God. What are you giving? हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे मध्य हमारा कैसा स्वागत हुआ तथा तुम मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर की ओर कैसे फिरे कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। Yes. So the Thessalonians were people who were serving idols before they came to the Lord. थिस्सलुनीय के जो लोग थे वो लोग प्रभु में आने के पहले मूर्ति पूजा करते थे। And they had great devotion in serving all his idols. और ये मूर्ति पूजा में बहुत मन से वो लोग करते थे। And many of these, but the thing about the idols is that they never used to speak to them. लेकिन ये जो मूर्तियाँ थी कभी उनसे बातें नहीं करते थे। They just do things out of routine. बस वो लोग एक रोजमर्रा के आदत की वजह से करते थे। Like most religions do, they do things out of a routine. जैसे ज्यादातर जो धर्म होते हैं उसमें लोग बस एक आदत के तौर पे चीजें करते जाते हैं। Hoping that God would be satisfied with them. और वो लोग बस ये आशा रखते हैं कि हाँ ये सब करने से जो उनका भगवान है उनसे खुश रहेगा। We have all done that in our past. हमने भी ये सब किया है हमारे पीछे पुराने दिनों में। We thought that God would be pleased by the good works that we have और done. हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे अच्छे कामों को देख के हमसे खुश होगा। But once we come to meet face to face with the Lord, our lives get changed. लेकिन एक बार हम लोग प्रभु के एकदम आमने सामने आ जाते हैं हमारा जीवन फिर बदल जाता है। That is the living God. We come to meet straight away, meet with God as a person. क्योंकि परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है, वो एक व्यक्ति है और हम उससे मिलते हैं। That's when we become born again. और तब जाके हमारा नया जन्म होता है। My God is alive. मेरा जो परमेश्वर है जीवित है। I know He's alive. मैं जानता हूँ कि वो जीवित He's है। my personal Savior. वो मेरा आपसी उद्धारक है। I'm not believing a doctrine, मैं बस एक शिक्षण के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा हूँ, but I've come to a person. लेकिन मैं एक व्यक्ति के पास आया हूँ। And when we meet that person, our lives change. और जब हम लोग ये व्यक्ति को मिलते हैं हमारा जीवन बदल जाता है। And then we say, Lord, I want to follow you. और फिर लोग बोलते हैं कि प्रभु मुझे तेरा पीछा करना है। And how do we meet the person? और कैसे हम लोग ये व्यक्ति को मिलते हैं? We don't see him face to face. हम लोग उसको एकदम आमने सामने नहीं देख पाते। God gives the revelation, and we see that that Jesus Christ is real and living. लेकिन परमेश्वर हमें एक खास ज्ञान देता है जिससे हमें मालूम पड़ता है कि प्रभु यीशु जीवित है और वो सच्चा है। That's why every one of us have to come to that relationship with God. इसलिए हर एक व्यक्ति को यहाँ पर ऐसा वाला रिश्ते में आना है प्रभु के साथ। And the more we come closer to the God, the more we are fascinated by Him. और जितना हम लोग उसको करीब आते जाएंगे उतने हम लोग उससे अचंभित होते जाएंगे। In Matthew chapter 16 verse 10. मत्ती चैप्टर 16 वाक्य 10, मत्ती चैप्टर 16 वाक्य 10, मत्ती 16 वाक्य 10, Matthew chapter 16 verse 10. My 16 verse 16. वाक्य 16, चैप्टर 16 वाक्य 16। And 15, 16. Jesus said, who do you say that I am? And Simon answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. 15 से पढ़िए। 15-16. Matthew chapter 16 verse 15 and 16. उसने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो? मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उससे कहा, हे शमौन, योना के पुत्र,
just स्वर्ग में है. So see, when Jesus asked his disciples, who do you think I am? तो प्रभु यीशु यहाँ पे अपने चेलों से पूछ रहे हैं कि तुम क्या सोचते हो मैं कौन हूँ? And how did Jesus look? और प्रभु यीशु कैसे दिखते थे? He looked very ordinary. वो बस एक साधारण से व्यक्ति जैसे दिखते If you थे. see an ordinary carpenter that comes to your house, Jesus looked just like अगर that. कोई साधारण से सुतार तुम्हारे घर पे आता है तो कैसे दिखता है? प्रभु यीशु वैसे दिखते He रहे. dressed like that. वो उसी तरीके से कपड़े पहनते थे. He was not a very fashionable, handsome person. वो बहुत ही सुंदर या बहुत ही स्टाइलिश व्यक्ति नहीं थे. He belonged to a poor family. वो बहुत ही गरीब परिवार से आए थे. And Jesus asked Peter this question, who do you think I am? और प्रभु यीशु पतरस से पूछते हैं कि तुम कौन सोचते हो मैं हूँ? He said, thou art Christ, you are the Messiah, the Son of the living God. और यहाँ पे पतरस बोलते हैं कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो. And then Jesus said, you are really blessed. और तभी प्रभु यीशु उसको बोलता है कि तुम धन्य हो. Because flesh and blood, or human beings have not told you about it, but my heavenly Father has told you about क्योंकि this. ये बात तुम्हें कोई इंसानों ने नहीं बताई है, लेकिन प्रभु यीशु ने स्वयं तुम्हें परमेश्वर ने स्वयं तुम्हें बताया. A person who comes to the Lord a person who is born again is really the miracle of God. एक व्यक्ति जो प्रभु में नया जीवन पाता है वो प्रभु का एक चमत्कार होता है. That God, He comes to me, God gives him a revelation, this is Jesus Christ, the Son of God. क्योंकि परमेश्वर उसे ज्ञान देता है कि प्रभु यीशु उसका पुत्र है, He is the Savior of the world. कि वो पूरे दुनिया का उद्धारक है. And that is a tremendous revelation that God gives. और एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान है जो परमेश्वर हमें देता है. You cannot get it when you come to the church and sit there. वो बस कलीसिया आने से हमें ये ज्ञान नहीं मिलेगा, You cannot come when you brought up a Christian family. या कोई मसीह ईसाई परिवार में बड़े होने से हमें ज्ञान नहीं मिलेगा. God has to reveal to each one of you हर एक व्यक्ति को परमेश्वर को ये ज्ञान देना पड़ता है that Jesus Christ is the Son of the living God. कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर के पुत्र हैं. And that is a tremendous revelation. और वो बहुत ही बड़ा ज्ञान है. And we can know about it. और हम लोग उसके बारे में जान सकते हैं बाहरी रूप से That Jesus Christ is God. कि प्रभु यीशु प्रभु है. But if it comes as a revelation in your heart, it will change our life. लेकिन जब वो एक ज्ञान के तौर पर हमारे मन में आता है तभी हमारा जीवन बदल जाता है. It will change our life. It will change our whole course of action. और पूरा हमारा जो तौर तरीका रहता है वो भी बदल जाता है. The Apostle Paul was there on the road to Damascus, जब अपोस्टल पौल दमिश्क की ओर जा रहा था and he was going to persecute the Christians. और वहाँ पे वो जो ईसाई थे उनको परेशानी देने जा रहा था. And suddenly he saw a light from heaven. और उस वक्त उसे एक स्वर्ग से एक ज्योति दिखी. And then he called to Paul, Paul, why are you persecuting me? और एक आवाज आई, उसने बोला कि पौल पौल तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? And the Apostle Paul didn't see the person, but he saw a bright light. तो अपोस्टल पौल को कोई व्यक्ति नहीं दिखा, लेकिन बस एक बहुत ही बड़ी ज्योति दिखी. And he fell down and he said, Lord, who are you, Lord? और उसने बोला कि परमेश्वर तू कौन है? He said, I am Jesus whom you are persecuting. और वो आवाज ने बोला मैं प्रभु यीशु हूँ जिसको तू तकलीफ दे रहा है. That just changed his life. और उसके बाद उसका जीवन पूरा बदल गया. So when you see the living God, you'll fall down. The Apostle Paul fell down from his horse. तो जब उसने जीवित परमेश्वर को देखा, अपोस्टल पौल अपने घोड़े से नीचे गिर गया He became blind. और वो अंधा हो गया. See, when you come to meet God, God floors you. तो जब भी तुम परमेश्वर के सामने आते हो तुम पूरे गिर जाते हो. It's not an intellectual understanding. God just floors you and throws you down. तुम्हारा दिमागी ज्ञान नहीं होता, लेकिन परमेश्वर की महिमा की वजह से तुम पूरी तरीके से गिर जाते हो. The glory of God is so great. क्योंकि परमेश्वर की जो महिमा है वो इतना महान है. You cannot see Him. तुम उसको देख नहीं It's सकते. so bright. इतना चमकीला होता है. When Jesus was there living in this world, जब भी I'm sorry, Jesus was living in this जब world. भी प्रभु यीशु इस दुनिया में जीते थे, He was a very ordinary person. बहुत ही साधारण से व्यक्ति थे. He walked with people, talked with people. लोगों के साथ चलते थे, उधर जाते थे. But you know how He is now? लेकिन क्या तुम जानते हो अभी वो कैसे हैं? He's a living God. वो जीवित परमेश्वर है. He is there in the right hand of God the Father. पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में वो बैठे हैं. And nobody can see Him. और कोई भी उसे नहीं देख सकता. And those who even have a glimpse of Him will fall down. और जो लोग बस उनका थोड़ा भी उनको देख लेंगे वो गिर जाएंगे. The Apostle John in the island of Patmos, he was there. जब ये अपोस्टल जॉन पैटमोस की जो जगह पे थे, And then he heard a voice behind him, a voice of Jesus Christ. तो उसको प्रभु यीशु का आवाज उसके पीछे से सुनाई दिया था. And if you read the Revelation chapter 1, he says, he suddenly saw Jesus, and Jesus, he knew it was Jesus, but it was so dazzling the appearance of the Lord. और आप लोग पढ़ते हैं कि कैसे यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखा और उसने जाना कि हाँ ये प्रभु यीशु है, और एकदम ही अचंभित बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो. And he fell down like a dead man. और एक मरे हुए व्यक्ति के जैसे वो सीधा नीचे ही गिर गया. God had to lift him up और फिर परमेश्वर को उसको ऊपर उठाना पड़ा and speak to him. और फिर उससे बातें करना पड़ा. He was, see, the Apostle John was who? अपोस्टल यूहन्ना कौन था? Some say he was one of his close relatives. ऐसा कोई बोलते हैं कि प्रभु यीशु का कोई रिश्तेदार होगा. And he was the one who was so close to the Lord. और वो अपने जीवन में भी प्रभु यीशु के बहुत ही निकट था. He was the one who used to lean upon Jesus' breast. वो हमेशा प्रभु यीशु की छाती के ऊपर टेका हुआ And रहता he was था. the closest. He said, he just the Lord who said he used to whisper in Jesus' ear. वो हमेशा प्रभु यीशु के कानों में कुछ ना कुछ बोलता रहता था. But when he saw Jesus in his glory, लेकिन जब उसने प्रभु यीशु को अपने महिमा में देखा he fell down. तो वो
गिर गया नीचे, He just couldn't stand क्योंकि वो बस सह नहीं पाया उसे, because he saw the glory of God. क्योंकि उसने प्रभु की महिमा को देख लिया The था। glory of Jesus Christ is so tremendous when we see Him. तो ये प्रभु यीशु का महिमा बहुत ही बढ़िया है जब हम लोग उसको देखेंगे। The prophet Isaiah, प्रॉफिट आइज़ाया, he was such a preacher of God. वो प्रभु का एक प्रचारक था। He used to tell all people that you are sinners, you have to repent and all that. वो सभी को बोलता था कि तुम पापी हो, तुम्हें पछतावा करना है। But when he came face to face with the Almighty, लेकिन जब वो परमेश्वर के सामने आया, he said, Lord, woe is me. He said, I am a man of unclean lips. उस वक्त उसने बोला कि परमेश्वर मैं वैसा व्यक्ति हूँ जिसके होठ खराब है, I cannot speak one word. मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता। The Lord sanctified him by touching his lips. और फिर प्रभु ने उसके होठों को छुआ और उससे उसको पवित्र बना दिया। One of the greatest revelation that we have is, Lord, you are so great and so good, and you have had mercy on me. और हमारे पास सबसे बड़ा ज्ञान यही होता है कि परमेश्वर तू इतना दयालु है, तू इतना महान है, मुझ पे रहम कर। You know that He is such a powerful person, the author of the living. He is the one who's made heaven and earth. हम लोग जानते हैं कि ये बहुत ही शक्तिशाली प्रभु है, उसने स्वर्ग और धरती को बनाया है। And then we'll fear and tremble before God. और तब हम लोग का भय, उसका भय हमारे मन में The रहेगा। ones who come to know Him said we should not depart from Him at all. और उसमें बोला है कि एक बार तुम प्रभु को जानते हो, फिर कभी भी पीछे मत हटना उसके मार्गों से चलने से, One day we have to deal with Him. क्योंकि एक दिन हमें उसके साथ हिसाब किताब करना है। All of us have to stand before God one day. हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामने एक दिन खड़ा रहना है। Each one of us individually to give an account of our lives. हर एक व्यक्ति को खुद से अकेले प्रभु के सामने खड़ा रहना है और हिसाब देना है। And we have to give an account as to how we live. और हमें ये हिसाब देना है कि हमने कैसे जिया है इस दुनिया में। And there's a verse in Hebrews chapter 3 verse 12. You don't depart from the living God. इब्रानी 3:12 में लिखा है कि जीवित परमेश्वर से दूर मत जाओ। Hebrews chapter 3 verse 12. इब्रानी 3 वाक्य 12। इब्रानी 3 वाक्य 12। 3:12 and 13. Take care, brothers, lest in any of you should be an evil, unbelieving heart and falling away from the living God. But encourage one another day after day, as long as it is still called today, lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. हे भाइयों, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से किसी का मन दुष्ट और अविश्वासी हो जाए और तुम जीवित परमेश्वर से दूर हो जाओ। तब जब तक आज का दिन कहलाता है, तुम दिन प्रतिदिन एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम में से कोई व्यक्ति पाप के छल में पड़कर कठोर हो जाए। Yes. See, we have come to says take care. Means we always tell when somebody goes, please take care. तो जब कभी कोई व्यक्ति किधर जाता है, हम लोग बोलते हैं कि ख्याल रखना। Take care, my brothers and sisters, that there should be an evil, unbelieving heart. ख्याल रखो मेरे भाइयों और बहनों कि तुम्हारे किसी के बीच में भी एक अविश्वासी मन नहीं रहे, दिल नहीं रहे। God says, see, we can always get an evil, unbelieving heart. तो प्रभु बोल रहे हैं कि हर एक व्यक्ति के हो सकता है कि एक व्यक्ति के पास एक अविश्वासी या खराब दिल आए। Why is an unbelieving heart so evil? तो ये अविश्वासी वाला दिल इतना खराब क्यों होता है? Why? क्यों? Any answer? बोल सकते हैं? Why is an unbelief is such an evil heart? God says. जो अविश्वासी वाला जो मन होता है बहुत ही खराब मन क्यों होता है? क्यों प्रभु बोलते हैं? Because they're falling away from the living God. Why is that? God says you've got an evil heart. तो क्योंकि हम लोग प्रभु से दूर हट जाते हैं उसकी वजह से, और प्रभु बोलते हैं कि तुम्हारा मन खराब है। Why? Please God. Because He says without faith it is impossible to please God. क्योंकि इसे लिखा है बाइबल में कि विश्वास के बिना हम लोग प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते। Correct. But the simple word it says you don't believe true and living God. क्योंकि जब हम लोग हमारे मन में अविश्वास होता है, हम लोग प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं कर रहे हैं। God is always truth and always love. प्रभु सच्चाई है और प्रेम है। And you're telling God you are not truth, you are a liar. और इसके बावजूद हम लोग प्रभु को बोल रहे हैं, नहीं प्रभु तू झूठा है। Your word is not correct. तेरे जो शब्द है वो सही नहीं है। You're making God like the devil. और तभी हम लोग बोल रहे हैं कि प्रभु तू शैतान के जैसा है। When God says something, always believe it and trust तो it. जब भी प्रभु कुछ बोलते हैं हमेशा उस पर भरोसा रखो। You don't believe God, God says it's such a terrible sin, you are saying that I'm a liar. क्योंकि अगर तुम प्रभु पे भरोसा नहीं करोगे तो प्रभु बोलते हैं बहुत ही बड़ा पाप है, तुम बोल रहे हो कि मैं झूठा हूँ, I cannot do that for you. कि मैं तुम्हारे लिए ये चीज नहीं कर सकता। God says I will help you, you say God you cannot help me. प्रभु बोलते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम बोलते हो नहीं प्रभु तू मेरी मदद नहीं करेगा। What a terrible insult. कितना बड़ा अपमान है ये प्रभु का, Such a terrible insult to God. इतना बड़ा अपमान है ये That's प्रभु why का। God, Jesus was most grieved by people when the disciples never had इसलिए unbelief. प्रभु यीशु को बहुत ही दुख होता था जब वो देखता था कि उनके चेलों के बीच विश्वास नहीं होता था। And then he used to see all the other people around him, people like Cornelius and the Roman soldiers, they believing. He said,
they have got such faith. और तभी प्रभु यीशु बोलते थे कि जो दूसरे लोग रहते थे जो यहूदी नहीं थे इसके बावजूद उनके पास विश्वास था तो प्रभु एकदम अचंभित हो जाते थे। And all these Jews who had read the Bible book by book, they had no faith at all. और जो यहूदी थे जिनके पास बाइबल था जो बाइबल पढ़ते थे उनके पास विश्वास नहीं था। Said, take care. The Bible says, take care that the unbelief heart doesn't come into your heart. इसलिए बाइबल बोलते हैं कि सावधान रहो कि ये अविश्वासनीय मन तुम्हारे अंदर नहीं आए। If you keep that unbelieving heart, you will go to hell. क्योंकि अगर ऐसा मन तुम रखोगे तो तुम नरक में जाओगे। You will fall away from the living God. प्रभु से तुम दूर हट जाओगे। Once you fall away from the living God, where will you go? अगर प्रभु से हम लोग दूर हट जाएंगे फिर और कहाँ पर जाएंगे? You will go to the devil. शैतान के पास जाएंगे। You will go to all your dead idols. हमारे सब पुराने जो मरे हुए मूर्तियां हैं उनके पास जाएंगे। You will run up to all the things of this world. और सब दुनिया की चीजों के पीछे भागेंगे। Because they will never tell you that to convict you of your sin. क्योंकि ये जो सारी चीजें कभी भी हमें एहसास नहीं दिलाते हमारे पाप के ऊपर। Why do people don't want to come to a living God? क्यों ऐसा होता है कि लोगों को जीवित परमेश्वर के पास नहीं आना है? As the question was asked, what is the meaning of walking in the light? जैसे थोड़ी देर पहले केविन ने पूछा था कि इसका मतलब क्या है कि दृश्य के ज्योति के मार्ग में चलना। The light is God's presence, and that God tells you that one sin you cannot stand in front of God. और ये जो ज्योति होता है ये प्रभु का उपस्थिति होता है जो तुम्हें बोलता है कि तुम्हारे जीवन में पाप है और ये पाप लेके तुम प्रभु के सामने नहीं खड़े हो सकते। You cannot keep on bad thought against anybody. एक गलत सोच विचार भी तुम किसी के खिलाफ नहीं रख सकते। So you have to keep ask God to forgive us, cleanse us immediately. इसलिए तुरंत हमें बोलना है कि प्रभु यीशु तू मुझे माफ कर, मुझे साफ कर। When God tells you something is wrong in your life, ask that Lord, it is wrong, I want to change it. जब प्रभु तुम्हारे जीवन में कुछ गलत चीज में दिखाता है तो बोलो हाँ प्रभु ये गलत है, मुझे माफ कर और मुझे साफ कर इससे। God points out our sin, but He always wants us to change. प्रभु हमें हमारा पाप दिखाता है ताकि हम लोग उससे छुटकारा पा सके और बदल सके। The devil, when he points out our sin, he always wants to condemn us. लेकिन जब शैतान हमें हमारा पाप दिखाता है वो हमें निंदा करने के लिए दिखाता है। That is, how when God speaks to us. तभी हम लोग इससे हम लोग जान सकते हैं कि कभी है जब प्रभु बातें करते हैं और कभी शैतान हमसे बातें करता है। God wants all of us to change. प्रभु चाहते हैं कि हम लोग सब लोग बदले। That we walk in the light and come closer to Him. जब हम लोग ज्योति में चलेंगे तब लोग उसके और निकट होते जाएंगे। That's why it says, but encourage one another one day after day. तो इसलिए हमें लिखा है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे को रोज प्रोत्साहन देना है। As long as it's called today. जब तक उस आज कहलाता है। Lest any of you be hardened by the deceitfulness of sin. ताकि कोई भी पाप के धोखे से अपने मन में कठोर नहीं हो जाए। We have got every day a life to live. हर एक व्यक्ति को हर रोज अपना जीवन जीना है। And when we meet each other, तब हम लोग जब एक दूसरे को मिलेंगे, we have to encourage one another. हम लोग एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है। Tell them God is on your side. God is the living God. He can help you. हम लोग को बोलना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे पक्ष में है, वो हमारी मदद करेगा। The devil says God cannot help. लेकिन शैतान बोलेगा नहीं प्रभु तुम्हारी मदद नहीं करेगा। There is your God. कहाँ पे है तुम्हारा प्रभु? We say my God is living. हमें बोलना है कि नहीं मेरा प्रभु जीवित है। He'll help me. वो मेरी मदद करेगा। He'll surely help me. जरूर मदद करेगा। And that's how people, men of God, live. और ऐसे ही है जो धार्मिक व्यक्ति पहले के जमानों के जीते थे। But if sin comes to our heart, we say no, it's not possible for me to live like that. लेकिन अगर पाप हमारे मन में आ जाता है फिर हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये संभव नहीं है कि मैं ऐसा जीवन जी सकूं। Sin deceives us. क्योंकि पाप रहता है हमें धोखा दे देता है। The devil is the person who makes us sin and then he deceives us. शैतान पहले हमसे पाप कराता है फिर हमें धोखा भी देता है। It is not possible, brothers. और वो बोलता है कि नहीं ये संभव नहीं है। So many people who say, oh, it is not possible like that. तो उसी तरीके से काफी लोग भी बोलते हैं कि हाँ ऐसा जीवन जीना संभव नहीं है। And then they harden their heart. और फिर उनका मन भी कठोर हो जाता है। They say, no, it is not possible, and then they die like that. और वो लोग बोलते रहते हैं कि ये संभव नहीं है और ऐसे बोलते बोलते मर जाते हैं। And if you don't die away from the presence of the Lord, you will not reach heaven at all. और अगर हम लोग प्रभु की उपस्थिति में नहीं मरेंगे तो हम लोग कभी भी उसके राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। So come to Jesus just as you are. तो इसलिए जैसे भी हो प्रभु यीशु के पास आओ। Come to the living God who can save you. जीवित परमेश्वर के पास आओ जो तुम्हें बचा सकता है। He is able to save you, brothers and sisters. वो तुम्हें बचा सकता है भाई और बहनों। And that's why it says it is a terrible thing to fall into the hands of the living God. इसलिए बहुत ही खतरनाक चीज है कि हम लोग जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ जाएं। So, Hebrews chapter 10 verse 31. इब्रानी चैप्टर 10 वाक्य 31। इब्रानी 10 वाक्य 31। Verse 30 and 31 it says, 30 और 31। For we know him who said, vengeance is mine, I will repay, and again the Lord will judge his people. It is a terrifying thing to fall into the hands of the living God. पढ़िए 30 और 31। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। परंतु उन दिनों में का स्मरण करो जब तुम ज्योति प्राप्त करने के पश्चात घोर कष्ट के संघर्ष में स्थिर रहते थे। Bas. So the apostle, the writer to the Hebrews tells about people who have once tasted the Lord and who backslide. तो यहाँ पे जो लेखक है वही ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने एक समय प्रभु को जाना है लेकिन बाद में पीछे हट गए हैं। And it is very easy to backslide. बहुत ही आसान होता है हमारे मसीह जीवन में पीछे How हट long जाना। does it take to backslide? कितना समय लगता है पीछे हटने को? One day. एक दिन। It says day after day.
Today you may be fine, but tomorrow you can backslide like anything. हो सकता है कि हम लोग आज बहुत ही अच्छे तरीके से जी रहे हैं लेकिन कल पीछे हट सकते हैं। So every day you have to go to the Lord. इसलिए हर रोज हमें प्रभु के पास जाना है। Lord, please help me in this प्रभु मेरी situation. मदद करिए परिस्थिति में, Help me in my job. मेरे काम में मदद कर, Help me in my home. मेरे घर में मदद कर। Help me not this negative thought that the devil has come. I don't want to put it. I want to come to you in ये सब every गलत सोच situation. विचार में शैतान मेरे दिमाग में डाल रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तेरे पास आना है। All those who come to the Lord will revive. जो कभी प्रभु यीशु के पास आता है प्रभु उन्हें बचाता है। He'll forgive your sins वो तुम्हारे पापों को माफ करेगा and help you. और तुम्हारी मदद करेगा। So that's why the Bible says, let us boldly come to the throne of इसलिए बाइबल grace बोलता है कि साहसी होकर हमें प्रभु के सिंहासन की ओर जाना है and we can receive mercy from God. ताकि हमें उसकी रहम मिले। As we read that verse in Hebrews chapter 4. हम लोग इब्रानी चैप्टर 4 में ये वाक्य पढ़ते हैं। इब्रानी चैप्टर 4 verse 15 and 16. वाक्य 15 और 16। For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but the one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and might find grace to help in the time of our need. क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे सहानुभूति न रख सके, वो तो सब बातों में हमारे ही सम्मान पाता गया, फिर भी निष्पाप निकला। अतः हम साहस के साथ अनुग्रह के सिंहासन के निकट आए कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए कि आवश्यकता के समय हमारी सहायता हो। See, Jesus Christ is our high priest, प्रभु यीशु हमारा मुख्य पंडित है and He knows how we go through all the trials and problems in our own life. और वो जानते हैं कि हम लोग कितने सारे अनेक परेशानियों के द्वारा जाते हैं हमारे जीवन में। He knows how the different people are harassing us, वो लोग जानते हैं कि कितने लोग हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं how much we are tempted by so much of sin, और कितना हमें लुभावना होता है पाप से, because He Himself was tempted just like us. क्योंकि वो खुद भी उसने लुभावना सहा था। That's why when we come to Jesus with all our problems, He is always willing to forgive us. इसलिए जब भी हम लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं हमारे सारी समस्याओं के साथ, तो हमेशा तैयार होते हैं हमें माफ करने के लिए। Come to Jesus as you are. प्रभु यीशु के पास आओ जैसे तुम हो वैसे। Don't try to hide your sin. कोई भी अपने पाप छुपाने की कोशिश I मत should करो। never try to say, Lord, what you have spoken to me, Lord, I just come and say, this is me, Lord, I am like this. बस तुम जैसे भी रहो, बस प्रभु के पास आओ, बोलो कि प्रभु ये मैं ऐसा हूँ, ये मेरा पाप है, मुझे आप माफ करो, Please forgive me मुझे माफ करो and please help me. और मेरी मदद करो। And then He said, let us come with confidence to the throne of grace. और हमें साहस के साथ आना है प्रभु के अनुग्रह के सिंहासन की When ओर, we'll receive mercy from God. Mercy means forgiveness. ताकि हमें करुणा मिले प्रभु का, और वो है प्रभु का माफी। And then after we'll find grace to help. और फिर हमें अनुग्रह भी मिलेगा ताकि हमें मदद मिले उससे। So meaning of grace is help from God. तो अनुग्रह का मतलब होता है प्रभु का मदद। Grace is not unmerited favor like many believers say, अनुग्रह का मतलब सिर्फ करुणा नहीं होता, but the grace is God's help. लेकिन अनुग्रह का मतलब होता है प्रभु का मदद। If you come to God just as you are, God will help you. अगर तुम प्रभु के पास जैसे तुम हो वैसे तुम अगर आओगे तो प्रभु तुम्हें अनुग्रह देगा। God will help you in your job, God will help you in your studies, God will help you in every possible way. और तुम्हारे जीवन के हर एक क्षेत्र में, पढ़ाई लिखाई में, काम में, सब जगह पे तुम्हारी मदद He will करेगा help you to overcome sin. और तुम्हें मदद करेगा कि तुम पाप के ऊपर विजय पा सको। He will help you because of God's help we stand. और प्रभु के मदद की वजह से हम लोग खड़े रह सकते हैं। It says not by our merit but by His grace. हमारे खुद की ताकत या क्षमता के ऊपर नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा। So always look to Jesus. हमेशा प्रभु यीशु की ओर देखते रहो। The Bible, there's a song that says, turn your eyes upon Jesus. वो गीत में लिखा है कि हम अपने निगाहों को प्रभु यीशु की ओर लेके जाओ, So Jesus is a living God. क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। You don't look at a photo of Jesus हम लोग प्रभु यीशु के चित्र को नहीं देखते, like many people do. They put photo and idols of Jesus. जैसे कुछ लोग हैं जो प्रभु यीशु का चित्र या मूर्ति लगाते हैं। We have to turn our inner eyes to Jesus. लेकिन हमारे जो मन की आंखें हैं हमें प्रभु की ओर लेके जाना Say, है। Lord Jesus, you are a living God. You have helped me. You can save me from this sin. और बोलना है कि प्रभु यीशु तो जीवित परमेश्वर है, तू मेरी मदद कर सकता है, ये पाप से तू मुझे बचा। I'm feeling so depressed and gloomy. Lord, please encourage me. मैं दुखी और निराश महसूस कर रहा हूँ, मुझे प्रोत्साहन दे प्रभु। The Lord will surely encourage me. और प्रभु तुम्हें जरूर प्रोत्साहन देगा। The Lord asks you, do you believe that I will be able to do this for you? प्रभु पूछेगा क्या तुम विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा? You said, yes, Lord, you can do it. हमें बोला कि हाँ प्रभु तुम कर सकता है। The Lord said, according to your faith, be it unto और you. प्रभु बोलेगा तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ हो। When the Lord healed so many people, जब प्रभु यीशु ने इतने सारे लोगों को चंगाई दी, He asked him, do you think I can heal you? वो उनसे पूछता था कि क्या तुम विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता Do हूँ? you think I can do this for you? क्या तुम विश्वास रखते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? And they said, yes. और वो लोग बोलते थे कि हाँ प्रभु। And they said, according to your faith, it is according to you. और प्रभु यीशु बोलते थे कि तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे साथ होगा। The Roman soldier said his son was so sick. रोमियो का जो सैनिक था उसने बोला कि मेरा बेटा तो बहुत बीमार है। He said, Lord, you don't have to come to my house all the way and pray for my son. और उसने ये नहीं Or बोला pray for my कि servant. और उसने बोला कि प्रभु ये जरूरी नहीं कि तू मेरे घर तक आके प्रार्थना करे, तू बस यही से बोल दे। I know you are the Lord of heaven and earth. मैं जानता हूँ कि तू धरती और स्वर्ग का प्रभु है। If you tell one thing, all these evil spirits can go away from that person. तू बस अगर एक शब्द बोलेगा तो ये जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं सब भाग जाएंगे, All the sicknesses can go. सारी बीमारियां चले जाएंगे।
He said, because I also know I am an authority. When I tell my soldiers to do this and do that, they immediately obey. क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं भी ऐसे व्यक्ति हूँ जिसके पास अधिकार है, तो जब भी मैं मेरे नीचे के लोगों को कुछ बोलता हूँ, वो लोग भी मेरे आगे का पालन करते हैं। And I know that you are under authority. If you say something, all these people will have to go. और इसलिए मैं देखता हूँ कि आप भी अधिकार के नीचे हो, इसलिए अगर आप भी कुछ बोलोगे तो ये सारी चीजें निकल जाएंगी। And Jesus marveled. He said, my, I've never seen such faith like this. और प्रभु यीशु को एकदम आश्चर्य हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला कि मैंने ऐसा विश्वास कभी भी नहीं देखा। See, if you submit to God in everything, you will have such faith to believe. अगर हम लोग प्रभु के हर चीज में, अगर हम लोग अधीन रहेंगे प्रभु के, तो हम लोग के पास भी ऐसा विश्वास होगा। God can solve every problem in your life. प्रभु हर एक समस्या का हल निकाल सकते हैं मेरे जीवन में। He can solve the powers of darkness comes over our life, our families, and our church. God can destroy those things immediately. जब ये अंधकार की शक्तियां हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर आता है, तभी प्रभु उसे उसका नाश कर सकता है। That's why we always pray to God. इसलिए हमेशा हमें प्रभु की ओर प्रार्थना करना है। Lord, I believe it. प्रभु मैं विश्वास रखता हूँ। It may take time, but I'll always believe you. भले ही समय लगे, लेकिन मैं हमेशा विश्वास रखूंगा। I will not believe the words of the devil who tells something will happen. मैं शैतान के शब्दों पर विश्वास नहीं करूंगा, जो हमेशा बोलते रहते हैं कि कुछ ना कुछ गलत होगा। The Lord said, because of your faith, this has happened to you. तो प्रभु बोलेगा, हाँ, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ऐसा है, ये तुम्हारे साथ होगा। And that is a wonderful thing that we have. और ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमारे पास होता है। When we depart from the living God, we try to go to all earthly things. जब हम लोग परमेश्वर से दूर हट जाते हैं, तो हम लोग संसार की चीजों की ओर बढ़ने लग जाते हैं। In 1 Timothy chapter 6 verse 17, पहला टिमोथी चैप्टर 6 वाक्य 17, पहला टिमोथी चैप्टर 6 वाक्य 17। instruct those who are rich in the present world not to be conceited or fix their eyes, hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. जो इस वर्तमान संसार में धनवान है, उन्हें आदेश दे कि वो अहंकारी ना बने और अनिश्चित धन पर नहीं, परंतु परमेश्वर पर आशा रखे, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। The Bible says, do not fix your hope on the uncertainty of riches. बाइबल में लिखा है कि जो दुनिया के जो संपत्तियां हैं या धन है, उसके ऊपर अपना भरोसा मत रखो। So I've got a lot of property. हम लोग बोल सकते हैं कि मेरे पास बहुत संपत्ति I've got है, a very big bank balance. मेरे पास बैंक में बहुत पैसा है, So I have nothing to worry. तो मेरे पास चिंता करने के लिए कोई बात ही नहीं। God says, don't ever think like that. प्रभु बोलते हैं कभी भी ऐसा मत सोचो। God has given you all these things. Just trust in God for everything. सब चीजें तुम्हें प्रभु ने दी है, इसलिए अपना भरोसा प्रभु पे रखो। God can take away those things. क्योंकि प्रभु ये सारी चीजें एक दिन ले सकता है, वापस ले सकता है। The Bible, Jesus said, give us this day our daily bread. प्रभु यीशु ने बोला, आज के दिन के लिए मुझे भोजन दे। Sometimes you say, that doesn't make any logic at all. The daily bread, I mean, I've got monthly bread, yearly bread will be okay, but not daily bread. तो कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये तो समझ में नहीं आता, रोज का रोटी का मतलब क्या होता है? अगर महीने का रोटी या साल का रोटी बोले तो फिर भी समझ सकते हैं। Why is it said daily bread? तो दिन का रोटी क्यों बोलते हैं? Huh? Anybody can say why daily bread? Why Jesus said daily bread? So you can say weekly bread at least, or weekly supplies at least. No, nobody just says daily bread. Yeah, I never know what happens tomorrow. क्योंकि हम लोग ये पता नहीं कि कल क्या होने वाला है। The Bible says day after day, you don't know what tomorrow whether you'll be alive. बाइबल में लिखा है कि पता नहीं कि कल तुम जिंदा रहने वाले हो कि नहीं। When I look out of my house, जब मैं अपने घर की ओर देखता हूँ, I love birds very much. मुझे पक्षियों से बहुत प्रेम है। Some birds I don't like, कुछ पक्षी अच्छे नहीं लगते, like the crow. जैसे कौवा। And my children also, my wife also knows it. और मेरे बच्चों को, मेरे परिवार वालों को भी पता है। Because they come outside the door and also early in the morning, they make a lot of noise, they disturb your sleep. क्योंकि सुबह कौवे लोग बाहर आके इतना आवाज करते हैं तो हम नींद खराब हो जाता है। And you keep something outside near the house, they come and rob it also. और अगर तुम कुछ बाहर रखोगे भी तो वो आके उसको चुरा के लेके जाते हैं। And then और सुबह ये जो पक्षी रहते हैं कितने अच्छे से आवाज करते रहते हैं, बहुत खुश लगते हैं। just sweetly they're singing and they're flying from one branch to another branch. इतने खुशी से लोग गाते रहते हैं और एक ढाल से दूसरे ढाल पे कूदते रहते हैं। And how so happy they are. और एकदम खुश रहते हैं। They'll chirp to one another, and there's the birds upon the treetops sing their song. We sing one song like that. तो वैसे गीत है कि पक्षियाँ पेड़ के ऊपर बैठ के एक दूसरे के और गाना गाते रहते हैं। Why are they singing so happily? तो लोग क्यों इतने अच्छे से गाना गाते रहते हैं? They know that their life is they're the only thing for that day. क्योंकि वो लोग बस उस दिन के बारे में सोचते हैं। They don't have a bank balance. उनके पास बैंक में कुछ पैसा नहीं होता है। They don't have a storehouse or a lot of grains. उनके पास कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे उन्होंने कल के लिए खाना पीना जमा करके रखा हो। Every day they go here and there, search and find grains. वो लोग बस हर रोज के लिए जाते हैं, ढूंढते हैं और खाना खाते हैं। And they're very happy. और उसी में वो लोग खुश रहते हैं। And all of them sing, and there's 8 to 10 of them, they come and they chirp around so merrily. और आपस में गाना गाते रहते हैं, खुश रहते हैं। And the Lord was telling me, you got a lot of money, but then the problem is that you're not at all happy.
और प्रभु मुझसे बोला था कि तुम्हारे पास तो पैसा है लेकिन इसके बावजूद भी तुम इतने खुश नहीं हो। You can't sing a song spontaneously to God in thankfulness, तुम अपने मन से प्रभु की ओर एक अच्छा गीत नहीं गा सकते, because most of our minds and our problems, our minds are fixed on things of this earth. क्योंकि ज्यादातर हम लोग का जो दिमाग होता है सब दुनिया की समस्याओं के ऊपर ही लगा रहता है। If all my material security is there, then I'll be happy. अगर मेरा जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तब मैं खुश रहूंगा, But I have no material security, then I'll keep on worrying and worrying. लेकिन अगर कोई अच्छा चीज नहीं चल रहा है दुनिया में तो फिर मैं उसके ऊपर ही चिंता करते रहता हूँ। That's why the Lord said, pray for a daily bread, because God, you are only there for today. इसलिए प्रभु यीशु ने बोला कि अपने आज की रोटी के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि तुम बस आज जिंदा रहने वाले हो, तुम्हें इतना पता है। In Hindi जैसे हम लोग 2 दिन का मेहमान है इधर, we are only there for 1 or 2 days. तो हम लोग बस चंद समय के लिए यहाँ पर रहने वाले हैं। So we have always to think, Lord, I'm here for a short time. हमें हमेशा याद रखना कि प्रभु मैं बस थोड़े समय के लिए यहाँ पे रहने वाला हूँ। Thank you, Lord, for the food today. धन्यवाद प्रभु आज के खाने के लिए। Thank you, Lord, for the people who come across my way. धन्यवाद प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जो मेरे Lord, सामने आता है। Lord, I want to enjoy this day to the best. मुझे आज का दिन में आनंद लेना है। Today is the 28th of September. आज 28 तारीख है सितंबर का। Thank God for everything. धन्यवाद प्रभु हर एक चीज के लिए। Thank God that you are alive today and sitting here. धन्यवाद प्रभु कि मैं जिंदा होने यहाँ पे बैठा हूँ। Thank God that you can read the Bible and think about God. धन्यवाद प्रभु कि मैं आपका वचन पढ़ सकता हूँ और आपके अंदर सोच सकता हूँ। We don't know that you will be alive tomorrow. मैं यही नहीं जानता कि कल मैं जिंदा रहने वाला हूँ कि नहीं। That's why it's always God. Thank God for all the blessings that you can enjoy today. इसलिए हमेशा धन्यवाद दो प्रभु को हर एक आशीष के लिए जो तुम जिसका आनंद तुम आज उठा रहे हो। God has not called us to be a little bit ascetics and pilgrims to go on the mountains and sit there and deny ourselves. प्रभु ने नहीं बोला कि हमें संन्यास लेके जाके बैठना है कोई जगह पे। What God has given us, enjoy it well and thank God for that. प्रभु ने हमें कई सारी आशीषें दी हैं और प्रभु ने हमारे आनंद के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना है उसके लिए। The spirit of thanksgiving, we can really praise God. For God, you have given me all these things. ये धन्यवाद देने वाली आत्मा से हमें प्रभु को धन्यवाद देना है क्योंकि उसने हर एक चीज हमें दी है। What if I fall sick today and I can't eat anything? क्या होगा अगर मैं आज बीमार पड़ा और उसकी वजह से मैं ठीक से खा नहीं पाऊँ? Some people don't even have taste in their tongue. कितने लोग ऐसे होते हैं जो ठीक से चख भी नहीं पाते खानों They को। don't feel like eating anything. उन लोगों को मन नहीं करता कुछ खाने के लिए। But God has given me a taste in my tongue. Say thank you, Lord, for that. लेकिन प्रभु ने हमारे जीभ पे एक स्वाद दिया है और हम प्रभु को धन्यवाद देना उसके लिए। God has given me eyes that I can see people. प्रभु ने हमें आंखें दी हैं जिसके द्वारा हम लोगों को देख सकते हैं। I can see my wife, I can see my children, I can see all good things. मैं अपने पत्नी को अपने बच्चों को सब अच्छी चीजों को देख सकता There हूँ। are so many people you can't even see. और कितने ऐसे लोग हैं जो देख भी नहीं सकते The eyes are so dim. क्योंकि उनकी आंखों में रोशनी कम है। So many things we have to be so thankful to God. इसलिए इतनी सारी चीजें हैं जिसके लिए हमें प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। Lord, you have done this for me. धन्यवाद प्रभु कि तूने ये सब चीज मुझे मेरे लिए Thank किया you है। for that you are a living God. One day I will see you face to मैं face. धन्यवाद देता हूँ प्रभु कि तू जीवित परमेश्वर और एक दिन में तुझे आमने सामने देखने वाला हूँ। A revelation of Jesus Christ will really change our own lives. प्रभु यीशु का जब ज्ञान है वो अगर हमारे जीवन में आएगा तो हमारा जीवन बदल जाएगा। If we don't have a revelation of Jesus Christ, we will be serving and doing things as dead birds. अगर प्रभु यीशु का ये ज्ञान हमारे मन में नहीं रहेगा तो जो कुछ भी हम लोग अच्छा करते हैं वो बस एक नाम के लिए रहेगा। We're doing for the sake of doing. बस करने के लिए हम लोग करते रहेंगे। We're praising God for the sake of praising. प्रभु की स्तुति भी हम लोग बस नाम के लिए करेंगे। But God wants the praise from the heart. लेकिन प्रभु चाहता है वो स्तुति हमारे मन से आए। Oh Lord, I thank you from the depth of my heart. धन्यवाद प्रभु मेरे मन के अंदर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। Oh God, that is true praise and worship for और God. वही है सच्ची स्तुति सच्ची आराधना। Those who worship God should worship God in spirit and in truth. जो लोग प्रभु की आराधना करते हैं प्रभु की आराधना स्तुति और सच्चाई में आत्मा और सच्चाई में करनी चाहिए। God is a spirit. क्योंकि परमेश्वर आत्मा है And they who worship Him must worship Him in spirit and और जो लोग उसकी आराधना करते हैं उनको आत्मा और सच्चाई में उसकी आराधना करनी we है। can do right now. और वो हम लोग अभी कभी कर सकते हैं। We can settle things for God right now. प्रभु के साथ सारा हिसाब किताब हम लोग अभी कभी चुकता कर सकते हैं। Just now say, Lord, certain things are wrong. I want to set it right. I'm sorry about it. Please receive me. बोलना कि प्रभु यीशु ये सारी चीज मेरे जीवन में गलत है, मुझे माफ कर, मुझे अपना तू। God will immediately receive और you. प्रभु तुम्हें तुरंत अपना लेगा, He'll immediately forgive you. तो तुरंत माफ कर देगा। Immediately our relationship with God will be established. तुरंत तुम्हारा रिश्ता वापस बन जाएगा प्रभु के And साथ He'll speak to you. और फिर तुमसे बातें करेगा He'll speak to you in our spirit. हमारे आत्मा में And you can come close to the Lord. और फिर प्रभु के निकट हम लोग जा सकते And हैं। that's why we must always draw close to God. इसलिए हमेशा प्रभु के निकट हमें जाना है। Each one of us can draw very close to the Lord. हर एक व्यक्ति प्रभु के बहुत ही निकट जा सकता है God is no respecter of persons. क्योंकि प्रभु के पास कोई भेदभाव नहीं है। You may be a child, you may be a sister, brother, you may be poor, rich, whatever it is, you can be very close to the Lord. तुम भाई हो सकते हो, बहन हो सकते हो, गरीब हो सकते हो, अमीर हो सकते हो, तुम प्रभु के निकट जा सकते हो। And that is the privilege of coming close to the living God. और यही है बहुत ही बड़ा मौका हमारे लिए प्रभु के पास आने का। You don't have to become a priest, हमें कोई पंडित बनने की you जरूरत don't have to नहीं become a pastor, anybody, but following the Lord and having fellowship with the Lord is your own personal business. या कोई अगुवा बनने की जरूरत नहीं, लेकिन प्रभु के साथ हम लोग संगति कर सकते हैं क्योंकि एक आपसी मामला होता है। That's the song we sing. What a privilege it is to serve the Lord, to pray to the Lord. और इसलिए हम लोग ये गीत गाते हैं कि कितना अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम लोग प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, उसकी सेवा कर सकते हैं। So let us come to a living God who can always save us. हमेशा हम लोग को जीवित परमेश्वर के पास आना है जो हमेशा हमें बचा सकता है। Amen. Amen. God